Good morning, students. Here I am going to talk about the topic of financial management for MCOM first year student as well as for the students who are preparing for UGC NET. It is one of the important topic for both of them, that is cost of capital. What is cost? Cost of capital for a firm may be defined as the cost of obtaining funds. It means the cost that a company has to pay in return of the capital. Capital, there are number of sources of capital like shares and debentures. You know, shares have two kinds, equity share capital and preference share capital. In return of shares, a company have to pay dividend. So dividend is a cost for obtaining shares, and as well as for debentures, interest is a cost on debenture because it is an obligation for a company to pay interest on the debentures. So interest is the cost of the debenture. So next we will discuss source of capital, that is debenture have two kinds, redeemable debenture, irredeemable debenture. Redeemable debentures are, redeemable means cancellation. Redeemable debentures are those debentures which a company can cancel after some specific period of time. Irredeemable, which can't be cancelled till the life of the company. Shares. Shares have two kinds, preference share and equity share. And preference share have sub categories, redeemable and irredeemable. Third source of finance is retained earning. So there are two kinds of methods: computation of cost of capital of specific source of fund. When we have to calculate one specific source of finance individually, and computation of weighted average cost of capital when we have to compute the composite or overall cost of capital of various sources of finance. Firstly, I will discuss first method, cost of debt. For debt, there are two kinds, irredeemable or redeemable. Subcategories: before tax, after tax. Its cost is equal to, cost of debt is equal to interest divided by principal amount of the debt. And after tax, interest divided by net proceed is equal to into 1 minus tax, because it is after tax of source of finance. Redeemable also have two categories, before tax, after tax. Its formula is simple, interest plus 1 divided by number of years when this debenture will be redeemed, redeemable value minus net proceed divided by redeemable value plus net proceed divided by 2. This is a specific formula that you have to cram for this method. And after tax, just put here 1 minus t and other formula is same. Now come to second point, cost of preference capital, preference share capital. Why preference share capital are known as the preference capital? Why? Because it has two preference than equity share capital. Preference for dividend, preference for principal amount. When for example, when a company is going to wind up, okay, a company have to pay dividend firstly to preference shareholder rather than equity shareholder. Company have to return principal amount of preference share capital before the equity capital. These also have two types, irredeemable or redeemable. Cost of preference is equal to dividend divided by net proceed. Cost of redeemable, डिविडेंड प्लस मेच्योरिटी वैल्यू मीन टू से रिडीमेबल वैल्यू भी आप बोल सकते हो इसको, माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ फेयर्स व्हेन दिस डिबेंचर विल बी रिडीम्ड, डिवाइड बाय मेच्योरिटी वैल्यू प्लस एन पी डिवाइड बाय हाफ, मतलब 50% कर देना उनका मेच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको करने के लिए डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस डिविडेंड यील्ड मेथड. इसको डिविडेंड और प्राइस रेशो मेथड भी बोलते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस. जो अवेलेबल है आपके पास, जो गिवन है इंफॉर्मेशन में, जो आपके क्वेश्चन में, वो आपने यूज कर लेना है. नेट प्रोसीड अवेलेबल है तो नेट प्रोसीड कर लो, अदरवाइज मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है तो वो यूज कर लो. ठीक है. देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड.
इसमें आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1, इट मीन्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल के लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में क्या डिविडेंड हम अर्न कर सकते हैं, क्या डिविडेंड हम पे कर सकते हैं, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। ये जी दिख रहा है, दैट इज ग्रोथ, कि हमारे डिविडेंड में कितनी ग्रोथ हो रही है। पिछले साल हमने 10% दिया, 20 दिया, नेक्स्ट ईयर 30 देंगे, तो इट मीन्स 10% की ग्रोथ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, D1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ करंट प्रीवियस ईयर प्लस इंटू 1 प्लस जी, ये है ग्रोथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड और अर्निंग प्राइस रेशियो। इसमें EPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड और MP। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट में से सब कुछ लेस कर देना है, जो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बची है वो ऊपर लेनी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओनली नंबर्स लेने हैं, अमाउंट नहीं लेनी। ओके, फोर्थ पॉइंट है रियलाइज्ड यील्ड मेथड। जो ये हमने प्रीवियस मेथड्स की हैं, इसमें सारी बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की। सो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, दैट्स वाई ये इतने रियलिस्टिक मेथड्स नहीं हैं। तो रियलाइज यील्ड मेथड आया, इसमें बोला गया कि आप पास्ट ट्रेंड को देख के आज के टाइम का डिविडेंड फाइनल करेंगे। आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइनलाइज होएगी, पास्ट में क्या आप रिटर्न ले रहे हो, उस वो ही हमारी आज का इक्विटी कैपिटल होगा। इसका प्रैक्टिकल नहीं है फॉर्मुलेशन, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो पास्ट में लाइक लास्ट ईयर हमने 10% रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया, तो आज के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट और लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट इज़ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कौन सी होती हैं, जो रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, रिजर्व्स जो कंपनी बचा के रखती है अपने पास, होल्ड करके रखती है। ठीक है, सारी की सारी वो अपनी जो अर्निंग्स हैं या प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं होल्ड करके रखते हैं अपने पास, रिजर्व कहते हैं जिसको हम। ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो इसका सोर्स क्या है, आप बोलोगे कि रिटेन अर्निंग है, इसका कॉस्ट तो है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है, अगर वो रिटेन अर्निंग हम कहीं और लगाएं तो वहाँ पर से क्या आनी थी हमें, रिटर्न, बट हमने नहीं लगाई, तो वो जो हम अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं कहीं और लगाने की पैसा, तो वो इसके लिए क्या बन जाएगी, इसकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। ये सिंपल फॉर्मूला है, डिविडेंड ऑफ एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय NP और MP जो भी अवेलेबल है प्लस G। आफ्टर टैक्स में है D डिवाइड बाय NP प्लस G इंटू 1 माइनस T, मतलब टैक्स आ गया 1 माइनस B। इसमें B वर्ड है, ये है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग न्यू सिक्योरिटीज, ब्रोकरेज कॉस्ट। जब आप शेयर्स लेते हो, ब्रोकर्स होते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, उनको जो आप कमीशन पे करते हो उसकी भी जो हमने लेस करनी है कॉस्ट। ठीक है, ये था हमारा स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस के में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओवरऑल भी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ सिंपल। इसमें हमने इट इज़ कॉस्ट ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ XW डिवाइड बाई एग्रीगेट ऑफ W। X मीन्स कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, W मीन्स वेट और प्रपोर्शन देना हमने। ठीक है, इसमें हमने 3 सोर्स लिए हैं, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी। डेट है 30 लाख, 25 लाख प्रेफरेंस है, इक्विटी 45 लाख। टोटल कितना हो गया, 100 लाख। तो इसका प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, टोटल सोर्स में से डेट का कितना प्रपोर्शन है, 30 लाख डिवाइड बाय 100 लाख इंटू 100, इसका प्रपोर्शन 30%। ऐसे इसका होगा 25 लाख डिवाइड बाय 100 लाख, इसका 25%। ठीक है, सो ऑन। इसमें प्रपोर्शन ले लेना जो कैलकुलेट किए हैं। आफ्टर टैक्स इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है, डेट का हमने पहले डिस्कस ही किया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का भी किया है, इसकी कॉस्ट निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So that's it. I wish you like my video, and it is one of my first attempt. I am not a pro in recording a video, so please subscribe my channel. If you wish, I will upload more videos on the relevant topics. Thank you.